So ISPS is the international framework which has been provided to protect your maritime sector. And this came up after 9/11. So the international framework, which is measures to enhance your maritime security and through which the ships as well as port facilities can cooperate and detect and avoid acts of violence which are threatening the security of maritime sector. So the ISPS is a code, but it became mandatory when it was adopted in SOLAS Chapter 11, Section 2. So it came up because ships were a prime target for terrorists and that can be used as weapons for destruction to carry weapons and terrorist or drugs. And hence the implementation of ISPS code. So many pirates were coming on board, but that time the ISPS code was not implemented. It was only after the 9/11 incident that the community thought that ships could be a potential target for terrorists. Hence, 22nd Assembly of IMO in November 2001, they agreed to develop new measures for security of ships and port facilities, which was adopted in December 2002. And in 2004, ISPS was implemented in through your Chapter 11, Section 2, which mentions special measures to enhance maritime security in the SOLAS. So the ships doing international voyages, which include passengers and cargo ships of 500 gross tonnage and above, which carry flag of the member states which have signed the SOLAS Convention. So 148 member states have signed SOLAS Convention or are operating in the waters of the member states. They are supposed to comply with ISPS code. So it has got two parts. Part A is mandatory, which covers provisions of Chapter 11, Section 2 of SOLAS. And Part B is the guidance for this provisions. So ISPS code provides a standardized framework. So that framework is for how to evaluate risk, how to enable government to offset change. And offset change means control the threat and vulnerability or weaknesses for ships and port by determining the levels of security, which is 1, 2, and 3. Now, what is that was the purpose of ISPS code. So, what is the objectives of that? First, it comes in the exam paper that what are the functional requirements, what is the ISPS code, what is the purpose of ISPS code, what are the objectives of ISPS code, and what are the functional requirements of ISPS code. So the objectives are to establish an international framework so that cooperation is there between the contracting governments, government agencies, flag states, ships and port industries to detect security threat and take preventive measures. Number two is to establish role and responsibility of these governments, the local agencies, the flag states, the ship and port industries, so as to enhance your security, maritime security. Number three is to ensure early and efficient collection and exchange of security sensitive information so that the ships can take early measures. So accordingly, we are supposed to have three levels. Level one means minimum security, which is 24/7. So minimum level of security which has to be maintained. Number two will be additional protective security measures whenever you have heightened risk. And level three is level where your specific protective measures are there only for certain time when a security is
incident is probable or imminent, like there's an explosion in the jetty. So that means there is a security threat which is already there. So the security level will be increased to 3. Ship also has to increase to 3. So what is the functional requirement? Functional requirement means क्या चीजें इसको चाहिए इसको फंक्शन करने के लिए. फंक्शनल रिक्वायरमेंट कभी भी क्वेश्चन में आता है, उसका मतलब है कौन सी रिक्वायरमेंट्स है आईएसपीएस कोड को फंक्शन करने के लिए. अब क्या क्या है दैट आई विल टेल. 1, gathering and accessing information with respect to security threat and exchanging such information. Unless you gather and assess information, your ISPS code will not function. So one requirement is that. Number 2 requirement is maintenance of communication protocol between the ship and port facility. अगर वो लड़ाई करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं. Number 3, preventive unauthorized access to ships, port facilities and the restricted areas. ये नहीं कि शिप पोर्ट में आया और सारी भीड़ चढ़ गई शिप पे. So unless you prevent unauthorized access, you cannot have the ISPS functioning. Number 4, preventing the introduction of unauthorized weapons, incendiary device and explosive to ship on port facility. अब ये नहीं कि दिवाली के पटाखे लेके कोई जहाज पे आ गया. So you can't allow that because that is an incendiary explosive device for ships, especially tankers पे. So you can't get them on board. Number 5, providing means of alarm in reaction to security threats of security incident. सपोज पायलट जहाज पे आ रहे हैं तो आपका अलार्म सिस्टम होना चाहिए, तो सो दैट यूकेएमटीओ बाकी आप जो एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म कर सके. सो दैट काइंड ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम शुड बी देयर. नंबर 6, रिक्वायरिंग शिप सिक्योरिटी प्लान based on ship security assessment. So unless you have a ship security plan and ship security assessment, your ISPS code will not work. So that is 6. 7 is training, drills and exercise. You can't have a fresh crew coming on board और उनको बोल दो भाई ISPS का काम शुरू कर दो. They don't have any familiarization or drill experience. They can't start off. So उसका चाहिए, जरूरत है. So that was a functional requirement of ISPS code. अभी तक आपको समझ आ रहा है? इसमें कोई क्वेश्चन अभी तक? Any questions? अभी तक समझ आ रहा है? ओके, आगे करा. यस सर. मैं इसलिए हिंदी में बीच बीच में बोल देता हूँ ताकि समझ आए. तो कुछ वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट होते हैं. रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शिपिंग कंपनी. अब शिपिंग कंपनी का क्या रोल है? तो पहला रोल है कि दे हैव टू डेवलप द एसएसपी. शिप सिक्योरिटी प्लान is developed to ensure application of measures on board designed to protect your people on board and the cargo. तो इनमें शिप सिक्योरिटी प्लान में 10 पॉइंट आते हैं. फर्स्ट, what are the measures to prevent weapons and dangerous substance to come on board? Number 2, what are the procedures in case of security threat? Okay, security threat है, क्या procedures करोगे? Number 3, what are the security drills and exercises? Number 4, सिक्योरिटी इक्विपमेंट क्या क्या है, उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? नंबर 5, एसएसओ मतलब शिप सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है, कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर कौन है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है? 6, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज, जैसे आपका ब्रिज है, सीसीआर है, ईसीआर है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, गैली है, फ्रेश वाटर टैंक्स है. ठीक है, ये सारे एरियाज डेंजरस कार्गो जहां लोड किए सब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज. ये आपके पॉइंट आउट करने चाहिए. मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस. नंबर 7, शिप सिक्योरिटी ड्यूटीज क्या क्या है लोगों की, शिप बोर्ड पर्सनल की क्या क्या ड्यूटीज है. नंबर 8, अगर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो तो व्हाट आर द प्रोसीजर्स हाउ टू रिपोर्ट इट. नंबर 9, शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम, वेयर इट इज लोकेटेड, हाउ टू टेस्ट इट and what are the operating procedures. And 10 is the procedure how to review and update your ship security plan. ये 10 पॉइंट हैं एसएसपी के. अगर एसएसपी पे नोट्स आते हैं 10 के 10 पॉइंट लिखने हैं. ये आपके कंटेंट्स हो गए.
जो आपके 10 पॉइंट है। प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट वेपन्स, हैजार्डस सब्सटेंस, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, जो पढ़ा है वही चीज है। Action to be taken when it's facing security threat, complying with instruction of contracting government with respect to security level, evacuation procedure in case of breach, which you cannot combat, specific duties of shipboard personnel, procedures how to audit your security related activities. Now, what are the procedures for training and drills associated with the plan, SSP, procedure for licensing with port facility, procedure how to report security related incident, what is the designation and identification of SSO and CSO with the duties and their contact details, what are the procedures to maintain, test and calibrate equipment as per the code, what will be the details of frequency of tests to be carried out, maintenance के लिए, then ship security alert system कैसे यूज किया जाए, उसमें डिटेल्स ऑफ टेस्टिंग क्या क्या हो, एंड फॉल्स अलर्ट अलार्म्स को कैसे नोटिफाई किया जाए, कैसे कैंसिल किया जाए, ये सब उसमें होगा। क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करोगे तो नेक्स्ट पोर्ट पे पोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर आके आपका क्लियर ग्राउंड देके डिटेल इंस्पेक्शन कर देगा। अब आता है व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सिक्योरिटी ऑफिसर, उसका क्या रोल है? तो he has to ensure that ship security assessment जो है it has to be carried out, SSP has to be developed, submitted for approval and then implemented and maintained, and he will also liaison with port security facility security officer and the SSO. Now designation of ship security officer क्या है? Who is the ship security officer? इसको normally आपको सर्टिफिकेट करना पड़ता है, SSO का कोर्स करना पड़ता है, और इसके लिए कंपनी आपको अपॉइंट करेगी SSO. So he is accountable to the master and responsible for the security of ship, including implementation of ship security plan. तो ये ship security officer जो है, he will carry out security audits, ship security assessment, advise to the modification of ship security plan based on your ship security assessment, liaison with your company security officer and port facility security officer. So once you are compliant with ISPS code, then you're supposed to have International Ship Security Certificate, which is issued by the flag state. Validity is 5 years. अब कई बार होता है कि आपके अलोंगसाइड बंकर बाज आ गया जिसमें कोई सिक्योरिटी लेवल का चक्कर नहीं है, उसके पास शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा भाई बताओ? आपने कभी सुना इसके बारे में कि कोई बंकरबाज आ रहा है, उसके पास कोई सिक्योरिटी लेवल नहीं, क्या होगा? सिक्योरिटी डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी उसका सर्टिफिकेट आएगा सर, सिग्नेचर डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा बिटवीन द बार्ज गाय मास्टर एंड द शिप मास्टर, कि आप लोगों को दोनों को अपनी अपनी ड्यूटी करनी है। दूसरा केस आता है, आप गए कोमोरोस आइलैंड में, कोमोरोस आइलैंड में ISPS कोड लगा ही नहीं है, ठीक है। अब आप उस आइलैंड में गए, मैं तो गया था, उसमें था ही नहीं कुछ, मैं तो बाहर भी होके आया था, तो इंडियन से गुजराती बोलते थे या अरबिक बोलते थे, और हमारे जहाज से कोई गया ही नहीं था। पायलट भी जो जहाज पे आया था, पानी में कुछ रस्सी वस्सी फंस गई थी, तो वो चाकू लगा के मुंह में टार्जन की तरह पानी में कूद गया था। इस टाइप के लोग थे वहाँ। हम लोग एंकर कर रहे थे तो 24 घंटे कप्तान को लगा एंकर करने में, और जब एंकर किया तो रस्सी गई हमारी, 2 रस्सियां बांध के जेट्टी पे। हमारा था, लेके आए थे हम लोग जेट ऑयल, छोटा टैंकर था, तो जेट्टी से 2 हाउजर कनेक्ट करके दूर लगाया गया, मतलब 2-2 करके ऐसे 3 हाउजर लगाए, तो 6 हाउजर लगे, 2-2 कनेक्ट करके शोर भेजे गए इतनी दूर। फिर मैं बोट से गया था अकेला, तो थोड़ा सा एडवेंचरस थे, तो निकल आए बाहर घूम के आगे, जहाज से कोई गया ही नहीं था बाहर। अब सपोज आप उस आइलैंड पे गए जिसमें ISPS कोड तो है ही नहीं, अब आप क्या करोगे? फिर आप साइन करोगे डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी बिटवीन द पोर्ट फैसिलिटी एंड शिप, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, आपके पास है।
तीसरा कंडीशन है, आप जेट्टी पे हो और सडनली आपके जहाज पे अलोंग साइड हो और सडनली आपके जहाज पे चोर आ गए। अब आपकी तो सिक्योरिटी लेवल बढ़ गया, 3 हो गया, जेट्टी वाले का तो 1 है। वो तो कहेंगे बाहर निकल जाओ। उसको बचने के लिए क्या करोगे? डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी साइन करोगे कि आप दोनों के सिक्योरिटी लेवल्स चाहे अलग हो, लेकिन दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कभी कभी क्या होता है कि आप कहीं से आ रहे हो, आपका सोमालिया वाटर से आ रहे हो, वहां पे सिक्योरिटी लेवल 3 है और पोर्ट में सिक्योरिटी लेवल 1 है। आप आ रहे हो, लेकिन नॉर्मली क्या है, पोर्ट स्टेट कांटेक्ट करके फ्लैग स्टेट को बोलता भी आपका सिक्योरिटी लेवल क्या है, इसका क्या है, तो आप एडजस्ट कर लेते हो। लेकिन फ्लैग स्टेट ने अभी तक मैसेज नहीं दिया मास्टर को, तो अभी तक 3 चल रहा है। मास्टर अपने आप उसको कम नहीं कर सकता। अब अलॉन्ग साइड तो अब आ नहीं सकते क्योंकि आपका 3 है, उसका 1 है। तो कैसे आएंगे? डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी साइन करेंगे। एक और कंडीशन है, आप डबल बैंक कर रहे हो, एसटीएस ऑपरेशन कर रहे हो, आपका सिक्योरिटी लेवल 2 है, उसका 1 है, फिर कैसे अलॉन्ग साइड आओगे? दोनों डीओएस साइन करोगे। तो कई सारे आपको एग्जांपल बताए हैं डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी साइन करने के लिए। अब तो सबको याद रहेगा ना, पढ़ सेम पढ़ के लेवल नहीं पे सुना नहीं है होती ना सर डीओएस? क्या इसमें? सेम लेवल पे नहीं होती ना डॉस फाइल? नहीं नहीं, सेम लेवल पे नहीं करते, लेकिन कई बार क्या है, जहाज फिर भी साइन कर लेता है पोर्ट से कि कहीं रात को चोर चढ़ गए तो फिर क्या करोगे? सपोज आपका जेट्टी पे अलोंग साइड आ गया, जेट्टी पे बम ब्लास्ट हो गया, उसका तो चेंज हो गया है ना। पोर्ट में सपोज और बम सर ब्लास्ट हो यूजुअली जो अपनी ये डॉस है, ये पोर्ट अथॉरिटी में साइन कौन करेगा? क्योंकि हमारे शिप पे तो यूजुअली गया। कभी कभी पायलट नहीं करता नहीं, था, कभी बोर्डिंग ऑफिसर जो आता था वो करता था। पोर्ट फैसिलिटी का भी सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, वो साइन करेगा। पायलट को करने की जरूरत नहीं है। पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी ऑफिसर साइन कर सकता है एंड यहाँ मास्टर साइन कर देगा, चलेगा। जो जेटी इंचार्ज है ना वो करेगा। जेटी लोडिंग इंचार्ज, मास्टर। ओके। लोडिंग मास्टर है वो इंचार्ज है, वो कर देगा, जो भी इंचार्ज। क्योंकि देखो क्या है, मोस्ट आप दोनों के लेवल सेम है, तो आप दोनों के लेवल सेम है, आपका भी 1 है, उसका भी 1 है। रात को आपके जहाज पे चोर चढ़ गए, अब आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए दोनों साइन करके रख लेते हैं। कई बार जेट्टी में कोई चोर आ गया चोरी करने के लिए, उसको लेवल चेंज करना पड़ेगा, 3, आपका 1 है, फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। उसको अवॉइड करने के लिए दोनों साइन कर, ठीक है। ये चक्कर है। तो ये आपका डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी है, इसको जरा एनलार्ज करता हूँ। अब ये शिप एंड जेट्टी का है, इसी तरह शिप एंड शिप का हो जाएगा। इसमें आएगा नेम ऑफ शिप, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, आईएमओ नंबर, पोर्ट फैसिलिटी, डिक्लेरेशन इज वैलिड फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। एंड यहाँ दिया हुआ है कि सिक्योरिटी लेवल ऑफ शिप कितना है, पोर्ट फैसिलिटी का सिक्योरिटी लेवल क्या है। दोनों का सेम होगा तब भी लिख देंगे दोनों सेम, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, दोनों की अपनी अपनी ड्यूटीज लिखेंगे कि पोर्ट फैसिलिटी की ड्यूटी क्या है, अफेक्टिंग द इनिशियल्स ऑफ एसएसओ, ensuring the performance all security duties, port facility अपनी ड्यूटी करेगी, शिप अपना करेगा। मॉनिटरिंग restricted areas, पोर्ट फैसिलिटी अपना करेगा, शिप अपना करेगा। कंट्रोलिंग एक्सेस टू पोर्ट फैसिलिटी, ये अपना करेगा। कंट्रोलिंग एक्सेस टू शिप, शिप अपना करेगा। मॉनिटरिंग पोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग बर्थिंग एरिया सराउंड शिप, ये करेगा। मॉनिटरिंग ऑफ शिप एंड बर्थिंग एरिया सराउंडिंग शिप, ये करेगा। हैंडलिंग ऑफ कार्गो, ये करेगा। डिलीवरी ऑफ शिप्स स्टोर्स, ये करेगा। तो अकॉर्डिंगली अपनी अपनी ड्यूटीज उसमें आ जाएगी। एंड एंड में क्या होता है, किधर आ गया, so the port facility and ship agree to the following security measure responsibility to ensure compliance with requirements of part A which is mandatory। उसके हिसाब से ये साइन होता है। and the form of declaration is used between ship and port facility if security is to cover 2 ships
देन इसमें पोर्ट फैसिलिटी के बाद शिप नंबर 1 शिप नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। सो यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। दो जहाज डबल बैंकिंग है तो आप डिक्लेरेशन ऑफ सिक्योरिटी का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज करो। So DOS addresses the security requirements that should be shared between port facility and ship, and दोनों की responsibility बनाई जाएगी। Contracting government shall determine whether DOS is required by assessing your risk the ship port interface or ship-to-ship activity poses to the person or property or environment. अब किस condition में you can request for DOS is when a ship is operating at a higher security level than port facility or another ship it is interfacing with, then you're supposed to sign DOS. When an agreement on DOS between contracting governments covering certain international voyages or specific ships, जैसे हज के पिलग्रिम्स हैं अरबिक एरिया एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, ये एग्रीमेंट साइन हो गया कि हमारे जहाज और जेट्टी में DOS साइन होगा, तो फिर आप DOS साइन करोगे। नंबर 3, अगर सिक्योरिटी थ्रेट है और सिक्योरिटी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग शिप और इन्वॉल्विंग पोर्ट फैसिलिटी, तो फिर साइन होगा। When ship is in port which is not required to have or implement approved port facility security plan, जैसे मैंने कोमोरोस आइलैंड बोला, तब ये साइन होगा। When the ship is conducting ship-to-ship activities with another ship not required to have or implement an approved SSP, जो मैंने आपको कहा था बंकरबाज जो 400 ग्रॉस टनेज से कम है, तो इन चीजों में DOS साइन होगा। अब आपका शिप सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम क्या है? So that is required to raise alarm ashore in reaction to security threats or security incidents by notifying the flag state and the ship without alerting ships or coastal states in the vicinity. So इसमें है कि ship masters are allowed to switch off AIS in specific areas where the threat to attack by pirates is there imminent, and information because they can collect through AIS. लेकिन AIS अगर आप कोस्टल वाटर्स में हो तो ऑन करेंगे, और यमनी वाटर्स में AIS को नहीं ऑन करेंगे, आप वहां जाओगे भी नहीं क्योंकि आपको कोई बचाएगा नहीं। अब इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ये इशू किया जाता है 5 years के लिए आफ्टर इनिशियल और रिन्यूअल वेरिफिकेशन। अगर आपने नया जहाज लिया तो आपको एक इंटरिम इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलेगा वैलिड फॉर 6 months, और इसी के अंदर में आपको इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट नॉर्मल वाला बनाना है। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस पहले टेम्पररी बनाते हो फिर परमानेंट बनाते हो, तो उसी तरह इंटरिम का मतलब टेम्पररी सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए होता है, उसके अंदर आपको एक्चुअल बनवाना है। तो ये इंटरनेशनल शिप सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है जिसमें नेम ऑफ शिप, डिस्टिंक्टेड नंबर्स, पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री, टाइप ऑफ शिप, ग्रॉस टनेज, IMO नंबर, नेम एड्रेस ऑफ कंपनी, ये स्पेसिफाई करता है दैट यू आर complying with part A. Verification show that security system and equipment are satisfactory as per part A of ISPS code and the ship has approved SSP, फिर वैलिडिटी इसकी दी जाएगी। अब आता है CSR, ये सब आपके एग्जाम में आता है। DOS क्या है, CSR क्या है? तो CSR जहाज की जन्म कुंडली है, जैसे हमारी जन्म कुंडली जन्म से होती है, CSR भी राइट फ्रॉम द टाइम इट हैज बीन डिलीवर्ड तब से होता है। आपका क्या रिकॉर्ड है, ओनर क्या है, कब डिलीवरी हुई, कितने ओनर चेंज हुए, सब आएगा। So continuous sinus record is a special measure under SOLAS for enhancing maritime security at sea. So this is in chapter 1. All passengers and cargo ships of 500 gross tonnage and above, they should have CSR on board. So this provides the onboard record of history of ship with respect to information. It is issued by flag state. And इसमें आएगा name of ship, port of at which the ship is registered,
ship identification number, date on which your ship was registered, name of flag, name of registered owner and registered address, name of bareboat charterer and registered address. bareboat charterer होता है जो शिप को हायर पे लेता है एंड डज ऑल द मैनिंग, मेंटेनेंस, सब कुछ करता है, उसमें फ्यूल वही डालता है, सब कुछ करता है। जैसे एक टैक्सी को हमने रख लिया या कार को रख लिया, उसको टैक्सी बना दिया, मतलब एक टैक्सी रख ली और हमने एक कार रख ली और प्राइवेट कार को हमने हायर पे ले लिया। अब हम उसको कहाँ भी यूज करेंगे, हमारा ड्राइवर, हमारा पेट्रोल, हमारा मेंटेनेंस सब है लंबे टाइम तक। तो मैनेजमेंट कंपनी ज्यादातर बेयरबोट चार्टर में जहाज लेती है। दो और चार्टर होते हैं, टाइम चार्टर और वॉयज चार्टर। टाइम चार्टर होता है 6 मंथ्स 1 ईयर का, वॉयज चार्टर होता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। फिर आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी एट विच इट इज क्लास, नेम ऑफ कंपनी वेयर इट इज रजिस्टर्ड, जहां से आपकी एसएमसी शिप सेफ्टी मैनेजमेंट एक्टिविटी इज बीइंग कैरिड आउट। फिर आपका नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट और आरओ which has issued the document of compliance in ISM code। तो जब ISM करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस बताएंगे। और आरओ क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। आरओ मींस जो क्लास के बिहाफ पे काम करता है। एग्जांपल, एससीआई कंपनी है, उसका फ्लैग स्टेट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका क्लास कौन हो गया, आईआरएस, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। अब सर्टेन एससीआई के जहाज पे सर्वे कराना है तो आईआरएस वाले नहीं आए, उन्होंने रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन एमएमडी को भेज दिया, जाओ इंस्पेक्शन करके आओ, सर्टिफिकेट क्लास इशू करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्लैग स्टेट। तो आरओ वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास फॉर द फ्लैग स्टेट। देन नेम ऑफ बॉडी विच कैरिड आउट ऑडिट और डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लायंस, ये आपको समझाएंगे आईएसएम में। किसने, कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट इशू किया, एसएमसी जो होता है दैट इज आल्सो अंडर आईएसएम, ये आपको बताएंगे। तो ये आपका सीएसआर आ जाता है, ये सीएसआर का फॉर्म है। देन नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसने इशू किया आईएसपीएस कोड, डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ शिप्स रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट, एनी चेंजेस मेड टू अबव मेंशन पॉइंट, उसमें मेंशन करना चाहिए। तो सीएसआर आइदर शुड बी इन इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच, या ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में बी प्रोवाइड। CSR should be always kept on board and be ready for inspection all the time. अब आता है what is the role of company security officer. So he is responsible for ship security assessment and he confirms the development of SSP. He is responsible for dealing with all non-conformity or SSP. In event of any security breach, master or ship security officer have to inform company security officer as per SSP. अब SSO का क्या रोल है? He'll be responsible for maintaining security as per SSP. He will ensure that crew is following the same, and then they maintain all the elements of SSP on board. He will carry out security drills and brief the same. So that is ISPS code. जरा आपको वीडियो दिखा देते हैं एक, एंड फिर अगली बार आपको लेवल्स के बारे में डिटेल बताएंगे। टेल यू द डिटेल्स ऑफ द लेवल्स।